شراب کے بغیر کوئی نہیں رہ پاتے تھے. ابھی موبائل کے اوپر پابندی لگا دو، کوئی موبائل نہیں چلائے گا. اے مولوی صاحب اپنے بھاشن اپنے پاس رکھ. ہم بیوی چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آج موبائل کا نشہ اتنا زیادہ ہے کہ موبائل کے بغیر آدمی رہ نہیں پا رہا ہے. موبائل چاہیے. ایک بیٹے نے تو اپنے باپ سے کہا مجھے موبائل دلاؤ. باپ نے کہا بھی پڑھ، موبائل بھی دے دیں گے تو برباد ہو جائے گا. اچھا. رات میں اس نے چھری لی، تلوار چاقو لیا بیٹے نے، اور اپنے باپ کی گردن کے اوپر وہ چاقو مار دیا، چھری چلا دی، گردن الگ کر دی. آج موبائل کا نشہ اتنا زیادہ ہے، یہ موبائل آج تو وقت کا قاتل بن چکا ہے. آج یہ موبائل اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے. اگر میں کہہ دوں موبائل کوئی نہیں چلائے گا حرام ہے، اس مولانا کو مت بلاؤ. اگر میں بول دوں موبائل چلاؤ سب کچھ جائز ہے، تو میرے بھائی ہاں موبائل ہے. آج موبائل کے بغیر کوئی جی نہیں پا رہا ہے. اتنا نشہ اس کے اندر آ گیا ہے. یہ ایسی نشہ ہے کہ موبائل چلا رہا ہے، آزان ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے، سامنے سے باپ آ رہا ہے کوئی فکر نہیں، بھائی گزر رہا، بہن گزر رہی ہے، کوئی ٹینشن. ایسا لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اتنا زیادہ موبائل سے چپکا رہتا ہے. اس دور کے اندر نبی اکرم کے زمانے میں لوگ شراب سے ایسی چپکے رہا کرتے تھے، بس شراب شراب شراب، صبح شام شراب شراب شراب، اتنا زیادہ پیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اچانک شراب کے پر پابندی نہیں لگائی. یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ نے یہ نہیں کہا حرام ہے، بہت بری چیز ہے، صرف اتنا فرمایا قل فیہما اسم کبیر، گناہ ہے، اس کے اندر فائدے کم نقصان زیادہ ہے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ہاں کچھ فائدہ تو ضرور ہے لیکن نقصان بہت ہی زیادہ ہے. آپ نے اس طریقے سے آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنایا. ایک ہی مرتبہ شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ دوسری مرتبہ آپ نے شراب کے تعلق سے یہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے لوگوں کا دل شراب سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے. قرآن کی دوسری آیت اتری، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم شراب کی، جب تم نشے کی حالت میں ہو. شراب پی لو تو نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ کتنی نمازیں تم نے پڑھی تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب تم شراب پی لو گے تو نماز کے قریب مت جانا. لوگ شراب دھیرے دھیرے کم کرنے لگے، کیونکہ شراب پیتے تھے ان کو لگتا تھا کہ میں نشے میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں گا. اب اسی وقت شراب پی، رات میں پی لیا، اب صبح تک تو نشہ ٹوٹ ہی جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. نماز پڑھ کر کے آئے، پھر شراب پی لی، اس کے بعد ظہر تک نشہ چلا جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی. اب ظہر کے بعد نہیں پیتا تھا، ابھی تو فوراً عصر کی نماز ہو جائے گی، عصر کے بعد مغرب تک نہیں پیتا تھا. دھیرے دھیرے شراب سے چھوٹنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی جب یہ آیت اترے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، قرآن کی آیت اتری تو ایک صحابی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے محمد رسول اللہ کی اجازت سے. آپ نے فرمایا لوگوں سے اب بتا دو شراب حرام، کوئی شراب نہ پیے، کیونکہ شراب پینے والا بڑا گنہگار ہوگا. جو شراب پیے گا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. شراب پینے والا اگر شراب کی حالت میں مر گیا تو جہنم کے اندر جائے گا. آپ نے باقاعدہ اس میسنجر سے اعلان کرنے والے سے کہا جاؤ کہہ دو شراب حرام کر دی گئی ہے. وہ آدمی دوڑتا ہوا مدینہ کی سرزمین کے اندر اعلان کرتا ہے، اعلان کرتا لوگوں سنو شراب تمہارے پر حرام کر دی گئی، اب تم شراب نہ پیو. حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر، حضرت ابو طلحہ کے اندر
घर के अंदर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को शराब पिला रहे थे। उनके कानों के अंदर भी आवाज आई, और लोगों शराब मत पियो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस शराब को हराम करार दिया है। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा शराब को अपने हाथों से फेंकते हुए, शराब की बोतल को और शराब के गिलास को, भरे हुए गिलास को नबी अकरम की आवाज आई, फौरन जमीन में फेंक दिया। ये भी गवारा न किया कि चलो शराब इतना पी लो जितना गिलास में मौजूद है, शराब फेंक दी और शराब पीना गवारा न किया। मेरे भाइयों, नबी की बात आई, फौरन आमन्ना वसद्दक़ना कह दिया, और अल्लाह के नबी की इस बात के ऊपर इतना यकीन किया कि जिंदगी में कभी भी दोबारा शराब न पी। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने लोगों के दरमियान में बुराइयों को ख़त्म किया। वो युज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी ने लोगों के दरमियान से बुराइयों को ख़त्म किया, पाक साफ किया। आज हमारे यहाँ कैसे ख़त्म होगा ये बुराइयाँ, कैसे ख़त्म होंगी? कभी आप सोचते हैं? हालांकि मालूम है ला नबी बादी, कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, कोई रसूल कोई पैगंबर ऋषि मुनि दुनिया के अंदर अब आने वाला नहीं है। हमारी लड़कियों के अंदर ये सुधार कब आएगा, कैसे आएगा? हमारी लड़कियां मेकअप करके जो चला करती हैं सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर, अपने जिस्म को दिखाते हुए, अपने चूड़ियों की खनक सुनाते हुए, अपने बाल को लहराते हुए और अपने जिस्म की खूबसूरतियां दिखाते हुए, खुशबू लगाते हुए रास्तों में चलने वाली हो, बताओ तुम किस इंतजार में हो? क्या सोचते हो कि दुनिया के अंदर और भी नबी आएंगे, हम उस नबी की बात के ऊपर यकीन करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया था नहीं, अब कोई नबी कोई रसूल कोई पैगंबर मेरे बाद नहीं आएगा। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। मैं लास्ट नबी हूँ, मैं लास्ट नबी हूँ, और मेरे बाद कोई भी नबी दुनिया में नहीं आएगा। अब बताओ इन लड़कियों को कौन सी मैं मिसालें समझाऊं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब फरमाया, ओ लड़कियों तुम रास्ते में चलो तो ऐसे चलो, जिस तरीके से ऐसे चलो, बीच में न चलो बल्कि रास्तों के किनारे किनारे दीवारों से सट सट करके चलो, दीवारों के करीब करीब में चलो, बीच रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है। सहाबा करम और नबी की उन औरतों के कानों के अंदर जब ये आवाज गई, लड़कियां इतनी ज्यादा रास्तों से हट हट के चलने लगी, दीवारों से इतना ज्यादा सट सट के चलने लगी कि बाज सहाबियात के कपड़े फटने लगे। आज जरा जलसों के अंदर आप देखिए, जलसे में चलिए बीच में ही चलेगी, किनारे नहीं। आप किनारे चलिए मौलवी साहब, वरना कुछ भी हो सकता है। ये हालात है अपने समाज का मेरे भाइयों, गौर कीजिए आप। वयुज़क्कीहिम, वो नबी आए लोगों को पाक साफ करने के लिए, बुराइयों से पाक साफ करने के लिए आए। और आपने ये भी फरमाया, हाँ बुराइयों से पाक साफ होना हो तो सुनो, नमाज की पाबंदी करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज तुम्हें बेहयाइयों से बुराइयों से रोक देगी। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, ये नमाज तुम्हें पाक कर देगी, ये नमाज तुम्हें बेहयाइयों और बुराइयों से रोक देगी। आज हमारे समाज के अंदर नमाज की पाबंदी नहीं है, मुअज्जिन की अजान की आवाज कानों से टकराती है, हम अपने घरों को और बिस्तरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी लड़कियां नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हमारी ये नौजवान नस्ल नमाज से कोई मतलब ही नहीं है। बस आई एम मुस्लिम, आई एम अहले हदीस, आई एम मुस्लिम, बस इतना जानती है ये कौम, सिर्फ अपने आप को मुसलमान गर्दान रही है। लेकिन मुसलमान का मतलब क्या है? रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना। लक़द कान लकुम फी रसूल
रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, तुम्हारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है, नमूना है। तुम्हारे लिए नबी अकरम की जिंदगी आइडियल है। अपने नबी की जिंदगी देखो, आपने नमाज से इतनी ज्यादा मोहब्बत की, इतनी ज्यादा नमाज से मोहब्बत थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। वो जानते थे और कहा करते थे, लोगों ये नमाज ऐसी है जो कल क़यामत के दिन सबसे पहले तुम्हें इसी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नबी अकरम इस नमाज से इतनी मोहब्बत किया करते थे, आप फरमाया करते थे कुर्रतु आइनी फिस्सलाह। ओ लोगों, इस नमाज, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज अल्लाह के नबी जानबूझ करके आपने कभी नहीं छोड़ी। सहाबा नमाज से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि सब कुछ छोड़ना गवारा करते थे, लेकिन नमाज नहीं। आज हमारे यहाँ देखिए, जुमे के दिन में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कब जाते हैं? जब खुतबा खत्म होने वाला होता है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने बुराइयों को अपनी जिंदगी से, लोगों के दरमियान की जिंदगियों से आपने खत्म किया और मिसाली समाज बना करके रख दिया। इतने जलसे होने के बावजूद आपके अगल बगल में जलसे हर दिन हो रहे हैं। लोग जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन सुन बस सुन के रह जाते हैं। बस मौलवी साहब हम सुनने के लिए आते हैं, अमल करने के लिए थोड़ी आते हैं। ये तो अमल करना, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो बुजुर्गों का काम है, ये तो मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों का काम है। हम तो जवान हैं, हम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे लिए नमाज नहीं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, सोचिए हालात कितने बदतर हो चुके हैं, कितने बदतर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में अगर आपने किसी जवान से सिर्फ इतना कह दिया, लौ कान युसल्ली बिल्लैल, आपने एक नौजवान जिसका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, उनसे सिर्फ इतना कहा था, आए अब्दुल्ला, उनसे नहीं बल्कि किसी सहाबी से कहा था, लौ काना युसल्ली बिल्लैल, अगर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे और ज्यादा महबूब बन जाएंगे। अगर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी वाली नमाज अदा कर लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। ये सुनना था किसी के जरिए से कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में कहा है कि तुम अल्लाह की नजर में बड़े प्यारे हो, नबी की नजर में प्यारे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है। उसने कहा बताओ क्या कमी है? अल्लाह के नबी ने कौन सी कमी के बारे में बताया? आपको बताया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कहा गया कि नबी ने फरमाया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, अल्लाह की नजर में प्यारे हो जाओगे। नबी ने कहा, हाँ नबी ने कहा। उसके बाद फकान बादु ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद वो नौजवान 18-20 साल का ये नौजवान अपनी जिंदगी में रात में बहुत कम सोया, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहा, कभी भी उसने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक बात पर उसने ऐसा अमल किया। मेरे भाइयों, हम भी आपके सामने कोई दूसरी बातें नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि नबी की बातें आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां नहीं आ रही है। आज हम अपने कपड़ों को टखने के नीचे पहन रहे हैं, आज हम दाढ़ियां छिला रहे हैं, आज हमारी लड़कियां बेपर्दा होकर के घूम रही है। ये सारी तकरीरें मैं कर रहा हूँ, ये सारी हदीसें मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो जुमले मेरे भाइयों मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन नबी अकरम की हदीस में तुम्हें बता रहा हूँ। ये लड़कियां जो बेपर्दा होकर के घूमा करती है, मैंने अभी आपको बताया ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी। मेरे भाइयों, क्या तुम्हें अपने नबी से मोहब्बत नहीं है? अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की बातों से मोहब्बत क्यों नहीं? ये इताअत तेरी जिंदगी में कब आएगी? नबी ने एक सहाबी जिनका नाम खुरैम अल-असदी है, खुरैम अल-असदी से आपने कभी फरमाया था, आई खुरैम अल-असदी लौला तूलो जुम्मती व इसबालु इज़ारी, तुम्हारे बाल बड़े बड़े, काश के तुम अपना बाल छोटा कर लो, तुम्हारे कपड़े टखने के नीचे
नीचे, तुम अपने कपड़े को नीचा कर लो। अगर खुरैम अल-असदी अपने बालों को छोटा कर ले और टखने के नीचे जो कपड़े हैं उसको छोटा कर ले और बाल को छोटा कर ले तो अल्लाह के नजर में बड़े प्यारे हो जाएंगे। खुरैम अल-असदी ने कैंची मंगाई, नबी अकरम की हदीस सुनने के बाद फौरन अपने बाल को छोटा छोटा कर लिया और अपने कपड़े को काट लिया और अपने टखने के नीचे ऊपर अपने कपड़े को कर लिया। ऐसे सहाबी थे जो नबी से सुना करते थे, या डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली ही सुना करते थे, फौरन अमल कर लिया करते थे। उनके अंदर तब्दीली आई थी, बदलाव आया था, चेंजिंग आई थी। लेकिन आज हमारे यहाँ मौलवी साहब हम जैसे थे वैसे रहेंगे, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है। चाहे 2-3 घंटा आप बोलते रहे मौलवी साहब, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ये हाल है हम मुसलमानों का। मेरे भाइयों, अभी हमारे इस जमीयत अहले हदीस के नाज़िम शेख इनामुल हक अल मदनी से हमारी बात हुई थी। जब यहाँ पे हम पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि आज का जलसा 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी टाइम दे दिया जाएगा। मैं इस खुशफहमी में था कि जल्दी अगर मैं प्रोग्राम कर लिया तो आराम कर सकूंगा, क्योंकि कल फिर मुझे कहीं बोलना है, फिर मुझे तकरीर करनी है मेरे भाइयों। लेकिन फिर वही 2 बजे दिया गया, 1-1.5 बजे फिर मुझे आज तकरीर मिली। फिर भी मैंने आपके सामने 1-1.5 घंटे की तकरीर आपके सामने रखी, मैंने आपके सामने बयान किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा कि रब्बुल आलमीन जो बातें हमने सुनी है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस मदरसे के लिए कुर्बानी पेश की, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को पेश कबूल अता फरमा।